कोविड का स्पेलिंग मैम COVID कोविड का मतलब पता है? तुमको तो पता है, मुझे पता है। जो पूछा अभी स्पेलिंग उसको पूछ रही थी। एनीवे, so the question is how COVID affected aviation industry. कोविड ने कैसे एविएशन इंडस्ट्री पे इफेक्ट फैला है वो हम डिस्कस करेंगे आज। द आंसर इज एज वेल। अच्छा, आंसर मत लिखो, एक सेकंड ज्वाइन करने से पहले सबको एक मिनट रुको। ओके, as we all know, as we all know, the fact, as we all know the fact that the world has as we all know the fact that the world has changed after COVID-19 pandemic. After COVID-19 pandemic, full stop. حي على الصلاة حي على الصلاة. However, حي على الفلاح. This virus has spread. However, this virus has spread. इस वायरस के बाद क्या बोल रही है मैम? Has spread, छा गया है, तो फैल गया है। Has spread. لا إله إلا الله. Worldwide. Allah. Worldwide. Full stop. अच्छा, full stop मत दो. However, this virus has spread worldwide without acknowledging borders. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग तो नहीं रहा। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून बोले। हाँ, गुड आफ्टरनून। कह रहे कि शुरू से बोल दीजिएगा, मेरा क्या है? शुरू से क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ था? जैसे कि मेरा अभी ज्वाइनिंग की है। तो मेरा प्रॉब्लम है, आपने अभी ज्वाइन किया है। पूरा क्लास क्या करेगा? अभी मैं पूरा रिपीट करूंगी तो लास्ट में रिपीट कर दूंगी, तब लिख लेना। अभी जहां से सुन रहे हो उधर से लिख लो। शुरू में थोड़ा सा जगह छोड़ दो, जब मैं रिपीट करूंगी लास्ट में तब लिख लेना। ओके। विदाउट एक्नॉलेजिंग
borders, full stop. It has impacted. It has तो नमाज पढ़ कर आता हूँ, अकेले ही पढ़ना impacted all the industries. It has impacted all the industries. One of the biggest industry that was one of the biggest industry. मैम ऑल द इंडस्ट्रीज हाँ, all the industries full stop दे दो, उसके बाद one of the biggest industry. One of the biggest industry. That was impacted by one of the biggest industry that was impacted by the pandemic. Impacted by the pandemic. Is aviation industry. Is aviation industry. Is aviation industry. Full stop. Full stop. According to ITA, हेडिंग है मैम नहीं एक साथ आंसर खत्म नहीं हुआ अभी तक. फुल स्टॉप देकर अकॉर्डिंग टू आइटा international passenger demand according to ITA international passenger demand dropped 75.6%. 75.6%. डिजिट में लिख के परसेंटेज का साइन दे देना. 75.6% and domestic demand drop 48.8%.
आप मैम बोलिएगा। According to IATA, international passenger demand dropped 75.6% and domestic passenger demand या फिर domestic demand dropped 48.8% compared to कौन से साल से कंपेयर करके ये हिसाब किया गया, कोई गेस कर सकता है? मैम 2017 और 18। नहीं, एक्चुअली 2019, क्योंकि कोविड दिसंबर में आया था और इंडिया में तो नहीं आया था तब तक, तो 19 का करीबन वो नवंबर तक का हिसाब से ये आईटा का हिसाब है, ठीक है, कंपेयर टू 2019। Full stop. According to the report, 7,900 employees, 7,900 employees, ब्रैकेट में इंडिया लिख लेना, 7,900 employees. Repeat me. According to the report, 7,900 employees, ब्रैकेट में इंडिया लिख लेना, have lost their job. Their job. Full stop. However, the situation is under control. However, the situation is under control and However, the situation is under control and aviation industry is working on it, and aviation industry is working on it मैम एविएशन इंडस्ट्री के बाद बोल दीजिएगा। However, the situation is under control and aviation industry is working on it. मतलब इस सिचुएशन के ऊपर ये जो इंसिडेंट हुआ कोविड-19 की वजह से, जितना सब कुछ हुआ, जितना लॉस हुआ, इसके ऊपर एविएशन इंडस्ट्री अभी काम कर रहा है. एविएशन इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन इट
So we can hope for the best. So we can hope for the best. पूरा आंसर मैं रिपीट कर रही हूँ। गिरीश जी आप नोट ले लीजिए जहाँ पे आपका छूट गया है। मैम कितने लिखवाई हैं? तो हेडिंग बोल दीजिए एक बार, हम जगह छोड़ देंगे। हेडिंग में क्वेश्चन था हाउ कोविड अफेक्टेड एविएशन इंडस्ट्री। The answer is, as we all know, the fact that the world has changed after COVID-19 pandemic. Full stop. However, this virus has spread worldwide. Full stop. Worldwide without acknowledging borders. Full stop. It has impacted all the industries. Full stop. One of the biggest industry that was impacted by the pandemic is the aviation industry. Full stop. उसके बाद according to IATA, international passenger demand dropped 75.6% and domestic demand dropped 48.8% compared to 2019. Full stop. According to the report, 7,900 employees bracket में India have lost their job. Full stop. However, the situation is under control and aviation industry is working on it. So we can hope for the best. Full stop. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट दे देना। मैम कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी? डेफिनेशन बता दें। ये डेफिनेशन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हाउ कोविड अफेक्टेड एविएशन इंडस्ट्री। ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, व्हाट इज एविएशन इंडस्ट्री, वो मैंने पहले ही बता दिया था। ये जो पूरा इंडस्ट्री है ये कैसे कोविड 19 की वजह से अफेक्टेड हुआ। तो कैसे हुआ, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हर एक इंडस्ट्री अफेक्टेड हुआ है कोविड 19 की वजह से। बहुत लोगों ने अपना जॉब्स खोया है, राइट। किसी के पास कुछ काम नहीं था करने के लिए। वैसे एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर भी मतलब एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत खराब दिन से गुजरा है। तो आईटा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू आईटा रिपोर्ट, इंटरनेशनल पैसेंजर मतलब इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज है, इंटरनेशनल जितने भी पैसेंजर्स है, उसका डिमांड 75.6% कम हो गया। ठीक है, मतलब फ्लाइट्स ऑपरेशन हो ही नहीं रहा था। एक टाइम था बीच में पूरा बंद था। और डोमेस्टिक डिमांड कितना ड्रॉप हुआ, 48.8%। ये याद रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खोया है इस इंडस्ट्री में। इंडिया में 7,900 एम्प्लॉइज ने जॉब खोया। इससे भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट में यही है तो यही बोलना पड़ेगा। तो अभी क्या है, सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में है। अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है, फिर से रिहायरिंग किया जा रहा है। जिसने अपना जॉब खोया उनको फिर से जॉब में लाने की कोशिश किए जा रहे हैं। पहले से थोड़ा हालत ठीक है अभी, तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। हम लोग ये आशा रख सकते हैं कि इन फ्यूचर और भी अच्छे दिन आएंगे इस एविएशन इंडस्ट्री में। और जितना भी लॉसेस हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, वो सब रिकवर हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। अच्छा, एक एक करके हम एयरलाइंस जो कंपनीज है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। आज मैं इंडिगो के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तुम लोग ऊपर में हेडिंग दे दो इंडिगो। सब कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को हर एक एयरलाइंस की जानकारी रहे। ठीक है, इंडिगो से स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिख लो इंडिगो।
guys, I'm sorry. Who are the founders of Indigo? अच्छा मैं बोल देती हूँ. राहुल भाटिया And Rahul Bhatia and there are two people. no one. Yeah, that's right. One is Rahul Bhatia and अच्छा मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो. Founders of Indigo बोल के छोटा सा हाइफन. मैम एक बार शुरू से बोलिएगा मैम. फाउंडर्स ऑफ इंडिगो. इंडिगो बोल के हेडिंग दे दिया आपके, उसके नीचे फाउंडर्स ऑफ इंडिगो बोल के छोटा सा लिख के छोटा सा डैश दे दीजिए. राहुल भाटिया, राहुल भाटिया and राकेश गैंगवाल. राहुल भाटिया and राकेश गैंगवाल. Rahul Bhatia and Rakesh Gangwal. Who is the CEO of Indigo? रोनो दत्ता. सरनेम सही है, नाम सही नहीं है. CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यस मैम. हाँ, CEO ऑफ इंडिगो रोनोजय दत्त. रोनोजय दत्त. फाउंडर्स हो गया, सीईओ हो गया. अभी लिखो फाउंडेड. फाउंडेड छोटा सा डैश दे दो. Indigo has been founded in 2005. तुम लोग फाउंडेड लिख के छोटा सा डैश देके 2005 लिख लो. ओके, उसके बाद लिख लो इट हैज, मतलब इंडिगो हैज %48 market share. Indigo has 48% market share. एक और बात, ये मार्केट शेयर का जो परसेंटेज है ये कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, तो तुम लोग गूगल में देखते रहना और अपडेटेड रहना. मैम व्हाट मींस मार्केट शेयर? मार्केट में मतलब इनका मार्केट शेयर कितना है मार्केट में. इन लोगों का कैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? basically market is the part of the company that exactly, the part they have owned in market is called market share. actually every company sell their equity to other हाँ, लेकिन इसको हिंदी में समझाना पड़ेगा ना. यस मैम. जैसे वो क्या होता है ना कि इक्विटी होती है, हर कंपनी की कुछ इक्विटी होती है जो लोग मार्केट में सेल के लिए रखते हैं, तो कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उतना परसेंटेज मिल जाता है, और जो है फाउंडर जो है अपने पास कुछ परसेंटेज रखते हैं, तो जिसके पास हाईएस्ट वो रहेगा वो उसमें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड में आ जाते हैं वो लोग. तो बेसिकली इनके पास 48% अपनी कंपनी का शेयर है और बाकी जो 52% जो शेयर्स है वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास है. अगर इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकती हूँ तो मैं बोलूंगी कि 48% ओनरशिप है इक्विटी का. ठीक है, इन लोगों के पास. यस मैम.
ताकि जो कि investor ये अलग अगर लगाए। चाहे तो, हाँ अगर ये चाहे तो ये 48% ये लोग सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ओनरशिप इनके पास है, 48% ओनरशिप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इतना मैंने बता दिया इंडिगो के बारे में, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। ऐसे ही कल मैं स्पाइस जेट, उसके बाद विस्तारा, जितना भी एयरलाइंस है, मैं एक एक दिन एक एक करके बताऊंगी, तुम लोग याद करते रहना, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कंपनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, व्हाई एविएशन इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। रिपीट कीजिएगा। व्हाई एविएशन इंडस्ट्री is a growing industry. एविएशन इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है? तो इसका बहुत लंबा आंसर हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है। मैं दो आसान पॉइंट्स तुम लोगों को अभी बोलूंगी, तुम लोग नोट ले लेना। ये हमेशा याद रखना, ये दोनों पॉइंट कहीं पे भी तुम लोगों को पूछा जाए, ये दोनों पॉइंट तुम आराम से बता सकते हो। नंबर 1 इज द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज एक सेकंड, विनय जी आप अपना आवाज म्यूट कीजिए। विनय जी अपना वॉइस म्यूट कीजिए आप। बोलिएगा। बोल रही हूँ, एक सेकंड मुझे दो। फर्स्ट जो बोलिए उसी को। हाँ, the air transport industry is, चलो तो ही है। उसके बाद कुछ बोला मैंने, the air transport industry is नहीं मैडम, नो मैडम। developing, the air transport industry is developing and कौन अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, क्यों कर रहे हो? हाँ, the air transport industry is developing and the future of aviation is bright, is bright. The air transport industry is developing and the future of aviation is bright. Full stop. Number 2 लिख लो।
industry is this industry is generating economic growth, comma, this industry is generating economic growth, comma, creating jobs, and developing विनय जी अपना माइक ऑफ कीजिए. And developing international tourism. डन. रिपीट करने की जरूरत है. क्वेश्चन क्या था? व्हाई एविएशन इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. एविएशन इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है? आंसर क्या है? द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज डेवलपिंग. जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रहा है. द फ्यूचर ऑफ एविएशन इज ब्राइट. एविएशन इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है. मतलब और भी उन्नति इन फ्यूचर हो सकता है, इवन होगा. उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? दिस इंडस्ट्री इज जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब देश को इकोनॉमिकली हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है. कॉमा क्रिएटिंग जॉब्स दे रहा है लोगों को. एविएशन इंडस्ट्री जितना बड़ा होगा उतना जॉब्स मिलेगा, उतना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा. एंड डेवलपिंग इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी हेल्प कर रहा है एविएशन इंडस्ट्री. क्लियर? अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ये दोनों पॉइंट आप बोल सकते हो तो वही काफी है. अच्छा, हो गया. अभी क्वेश्चन ले लो नोट्स में. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो एविएशन एक्सीडेंट होता है उसका कुछ मैं एग्जांपल्स आज दूंगी. ठीक है, तो हेडिंग ले लो.
हेलो हेलो मैम मैम आ गए हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस मैम हेलो। यस मैम नाउ Yes, ma'am, आ रहा है। अच्छा, नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो तुम लोगों ने हेडिंग लिख लिया, टाइप ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स? नो मैम अच्छा, तो मैं बता रही थी कि एक्सीडेंट एविएशन इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट में कभी भी किसी वजह से भी हो सकता है, तभी इसको एक्सीडेंट्स बोला जाता है। लेकिन कुछ कॉमन टाइप्स है, तो उसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन टाइप्स ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स। तुम लोग बस टाइप ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स हेडिंग ले लो। हेडिंग में लिखो टाइप्स ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स। अगर वॉइस कट होता है तो प्लीज लेट मी नो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। बोलिएगा टाइप्स ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स। Number 1 is pilot error. नींद निकल रहा है। चलो मैं सोने, बहुत हो गया। मैम आर यू देयर वी कांट हियर यू मैम Hello, यस मैम can you hear me now? यस मैम यस मैम नाउ Okay. Okay. Pilot error लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद Yes, sir. मैकेनिकल फेलियर। अच्छा, नेक्स्ट आवाज नहीं आ रही थी। किसने? फर्स्ट क्या बोले मैम फर्स्ट मैंने बोला पायलट एरर। ये आप लोग म्यूट रखिए ना। पायलट एरर, उसके बाद मैंने बोला मैकेनिकल फेलियर। Number 3 is design defect or failure. Number 3 is design defect or failure. रिपीट मैम कौन सा रिपीट करो, कहाँ तक लिखा आपने? थर्ड Third, design defect or failure. Design defect or failure.
Number 4 is air traffic control error. Air traffic control error. Air traffic control error. Number 5 is defective runways. Defective runways. Defective runways. हेलो हेलो मैम हेलो मैम हेलो मैम मैम आवाज नहीं आ रही है। अरे कम से कम आप लोग तो बोल दीजिए ना, एक बार आवाज नहीं आ रही है। आवाज हेलो जी हेलो आज मैम। तक हो गया। अभी अभी ठीक है? फाइव अभी ठीक है क्या? जी मैम आवाज क्लियर आ रही है आपकी, अब आप बोले। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। कोई बोल रहा है आ रहा है, कोई बोल रहा है नहीं आ रहा है। अब आ रही है मैम, अब आ रही है, अब आ रही है। यस मैम, इट इज क्लियर। नहीं मैम, अभी आपकी आवाज कट आ रहा है। नहीं मैम, अभी आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम योर वॉइस इज अगेन गॉन। हेलो मैम, हेलो भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा देर। ओके सर। आज तक हुआ है, इसके बाद से नहीं हुआ है। वेट कर लीजिए आप लोग। मेरा वॉइस कट हो रहा है। यस मैम, यस मैम। हैप्पी पलट पलटा ऐसा समझ में आया है। देखो आया और नहीं होगा। आवाज हेलो? आ रही है मैम, तो नेक्स्ट दिखाइए क्या किया जाए। अभी भी वॉइस आवाज कट के आ रही है जी, तो नेक्स्ट डे अब अगला क्वेश्चन रखा जाए। गिरीश, विकास, मेरा आवाज अभी आ रहा है क्या आप लोगों के पास? यस मैम, आ रही है, कट के आ रही है, कट के भी आ रही है मैम। कौन तब ले आपने कौन तब ले तुम्हारे घर क्या रही है? भैया का वो मछली बोल रहा थोड़ा और भून देंगे, मसाला खाना है उसमें, ठीक है? अरे ताल देंगी हो। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज हेलो मैम आ रही है। नेटवर्क इशू आ रहा है भाई, दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है।
हेलो मैम। सबको आवाज सुनाई दे रही है? भाई साहब सुनो यार, दिखाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही है क्या? मैम लेफ्ट हो गई क्या? नहीं भाई मैम लेफ्ट नहीं हुई है। कट हो रहा है मेरा वॉइस अभी भी? यस मैम। नहीं मैम क्लियर है, वॉइस क्लियर है आपकी। जी यस मैम। यस मैम, अभी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन 5 के बाद से कुछ और बोलेगा? नहीं क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं बोला गया। हेलो? अरे नहीं बोला गया भाई, अभी कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन 5 के बाद, पॉइंट के बाद। ठीक है। कुछ नहीं बोला गया भाई लोग। हेलो पाँच मिनट और अभी। हेलो जी मैम आवाज आपकी क्लियर आ रही है। अभी तो क्लियर आ रही है मैम, बाद में दिक्कत हो रहा है थोड़ा। आवाज कट जा रही है। मैम आप हेडफोन यूज कर रही है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है। भाई सब आवाज आ रही है आप लोगों को? भाई आपकी आवाज आ रही है, मैम का आवाज नहीं आ रहा है। मैम का आवाज नहीं। दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या तो हेडफोन प्रॉब्लम है। मैम का आवाज नहीं आ रहा बस। नेटवर्क प्रॉब्लम आवाज अभी ठीक है? अभी तो ठीक है मैम, बाद में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी सुनाई दे रहा है? जी मैम आवाज आ रही है। हाँ फ्रेश नहीं आ रही है आवाज, कट के आ रही है। still are you there? Yes ma'am, your voice is not coming properly. Sometimes you can hear this, sometimes your voice is gone. प्रॉब्लम हो गया फिर। लेकिन मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Ma'am, now we can hear you ma'am. Now your voice is coming clearly.
Ma'am, are you there? Yes. Yes, ma'am. Now your voice is coming. Again, it's on. Hello, ma'am. Next day class open. अभी भी वॉइस कट हो रहा है मेरा? नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. तो आइए Ma'am, we can't hear you. आवाज Ma'am, I think we should dismiss the class for the today because we are facing too much problem, and it's only 6 minutes are left. So we, if Okay. you want, you can dismiss. Okay, today हम dismiss the class, लेकिन कल extra 10 minutes class होगा, ठीक है? Okay, ma'am. पहले से ही मैं बता दे रही हूँ. Yes, ma'am. कल .8 से क्लास स्टार्ट होगा. 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होगा कल. ओके मैम। और कल मैं क्लास नहीं ले अभी सबको सुनाई दे रहा है कैसे? Yes, ma'am. अब आ रही है आवाज. Yes, ma'am. अभी भी आवाज आ रही है? वाह. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. अभी आ रही है तो आंसर भी लिख लो. Yes, यहाँ पे आ रही है. Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, I think your voice is again gone. तभी कौन हो रहा है? आज जब पढ़ाई के बाद याद आता है. अजीब है. ठीक है, कल क्लास करते हैं 1 बजे से. कल 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होगा. मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, ठीक है? और Yes, कल okay. मीटिंग हुआ था, सर लोगों ने आपको कुछ बताया कि कब होगा वो क्लास? कल जो मीटिंग हुआ था नहीं बताया, ठीक है? मैं बात करके आप लोगों को बोल दूंगी, ठीक है? Okay, ओके मैम। ओके, ये क्लासेस कब तक चलेगी? कितना क्लास और चलेगा? अब मैंने जैसे कि बताया था, सर लोगों से बात कर लेना, सुमन सर या फिर सौरभ सर से. वो लोग आपको बता देंगे कब तक चलेगा. हेलो मैम, इंटरव्यू कब होगा? जो एडमिट का आप लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सब कुछ ये सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है और मैं आंसर नहीं कर सकती, ठीक है? आज क्लास 8 पे डिसमिस कर रही हूँ मैं. ओके मैम. ओके मैम। okay, ma'am. भाई हाँ भाई. से बोल दीजिएगा जो मेरा छूट गया था, नहीं बोल पाए मैडम से. हाँ भाई, नोट कर लीजिए.
शुरू से जो क्वेश्चन था ना, हाउ कोविड अफेक्टेड एविएशन इंडस्ट्री, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट किया है सर? हाउ कोविड अफेक्टेड एविएशन इंडस्ट्री। कोविड अफेक्टेड हो गया एफेक्ट एविएशन, हाउ कोविड अफेक्टेड एविएशन इंडस्ट्री। मैं आपको फोटो भेज दूं क्या, सबसे बेटर होगा? सही रहेगा। हाँ कीजिए हाँ भाई, मेरे भाई ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना। ठीक है, मैं ग्रुप में इसका फोटो भेज दे रहा हूँ। ठीक, हाँ सही रहेगा। दे दीजिए सर, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ वो मैं बोलूंगा, फिर टाइम लगेगा। ठीक है, मैं इसका फोटो भेज दूँ। ठीक है।